ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਠੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਰਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 60 ਘੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 60 ਘੜੀਆਂ 60 ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਜਰ ਨੇ। ਘੜੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਲੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਨਿਰਤ ਕਰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਇਹ ਪੈਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਿਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਘੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਪੈਰ ਰੂਪੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਆਈ ਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਚੌਮਾਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁੱਤ, ਜਦ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਔਰ ਇਹ पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लेने ने।
फिर ऐसी रुत कि अगन ही वरस रही है, चारों पासे अग ही अग, लू ही लू चल रही है। तो उस वक्त घड़ियां, उस वक्त पैर ये अगन दे गहने पहन लेंदे ने। तो किसे घड़ी दे गर्मी, किसे घड़ी दे बारिश, ते किसे घड़ी दे पवन दा तूफान, तूफानी वेग। ये वक-वक घड़ियां ते ग्वाले गहने पहनदे रहंदे ने, गहणियां नूं बदलदे रहंदे ने। गहने पाउण पाणी वे संतर, चंद सूरज अवतार। इस रास दे कृष्ण कौन है ते इस रास दे राधिका कौन है? राधा चंद्रमा है और सूरज श्री कृष्ण है। रास लीला नूं दरअसल कृष्ण लीला भी कहते हैं। ते सारी लीला कृष्ण दे आले दुआले घुमदी है। महाराज कहते हैं चंद सूरज अवतार, ये जो सूरज है ये कृष्ण है। ते प्राकृतिक मंडल दियां ये सारियां रुत्तां, थितवार, ये घड़ियां ये सूरज दे आले दुआले नचदियां ते टपदियां। ये सारा पसारा सूरज करके है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। जैसे सारी लीला कृष्ण करके है, इस वास्ते उसनों कृष्ण लीला कहते ने। ये सारी लीला सूरज करके है। ते इस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है, उस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है। ते आखिर दे गल मुकदी है परमात्मा ते। सारी इस लीला दा मरकज केंद्र वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। तो सूरज कृष्ण है, चंद्रमा राधिका है। सगली धरती माल धन, वर्तन सर्ब जंजाल। ये सारी दी सारी धरती ते दा वर्तन वलेवा माल इत्यादक ये स्टेज है। इस दे उत्ते ये नृत्य होंदा रहता है, इस दे उत्ते ये नाच होंदा रहता है और जीव इस नाच नूं वेखदे रहंदे ने। ये वर्तन वलेवा जो जीवां लई जंजाल है, ये स्टेज धरती जिस दे उत्ते ये रास पै रही है, जिन्नू वेख वेख के जीव आनंद माण सकदे ने, खेड़ा लै सकदे ने। पर इस रास नूं वेखण लई सूक्ष्म बिरती चाहिदी, इस रास नूं वेखण लई बारीक मत चाहिदी है। महाराज कहंदे नानक मुझसे ज्ञान भी होनी। इस तरह दी रास नूं वेखण दा ज्ञान ना होना, उन्हां दा जीवन मुसिया जांदा है, भाव लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जांदा है। खाए गया जमकाल। ते इस तरह दे जीवां नूं आखिर दे जमकाल खा जांदा है। ओ बार बार जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पैंदे रहंदे ने। तो साहिब कहंदे मूल रूप दे ते परमात्मा दी तरफों ये अगम्मी रास चल रही है। सिर्फ वेखण वाली दृष्टि होवे, कोल ज्ञान होवे, ते हर थां ते हर वक्त रास पै रही है, रास लीला जो है चल रही है। पर ये रास लीला भी उन्हां नूं दिखाई देवेगी जिन्हां दे कोल सतगुरु दा ज्ञान है, जिन्हां दे ते परमात्मा दी बख्शिश है। मल्ला पहला वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए, वेखे लोक हसे घर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ, पिन्नी रैन जे नामन चाओ। सिखी सिखया गुरु विचार, नदरी कर्म लगाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थल वरोले बहुत आनंद। लाटू माधानियां अनगा, पंखी भौंदियां लैन नसा। सूए चाड़ भवाइए जंत, नानक भौंदियां गणतन अंत। बंधन बंद भवाइए सोए, पइये किरत नचे सब कोए। नच नच हसे चले सिरोए, उड़ न जाई सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। सतगुरु देव जी महाराज इस अगम्य श्लोक विच फरमान कर रहे हैं, अगर वो परमात्मा दी चलाई हुई रसाई हुई रास लीला नहीं दिखाई देती, ਉਹਦੇ ਚ रस नहीं मिलता, ਉਹਦਾ बोध नहीं, ਤਾਂ बाकी दी जिहड़ी रास लीला है वो की है? वो ते है नचन कुदन मन का चाव। वो मनोरंजन है, ज्ञान नहीं। वो मनोरंजन है, भक्ति नहीं। वो मनोरंजन है, प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं। वो केवल मन का परचावा है, आत्मक आनंद नहीं। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा दौर सी, आपने वहम तोमात रस्मो रिवाज मनोरंजन दे तरह तरह के जुड़े साधन ने सारे भक्ति भाव ज्ञान ते ईश्वरी साधना दे चों कढ दिते।
आख्या ईश्वरी साधना मनोरंजन नहीं, ईश्वरी साधना एक आनंद है। तो नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। महाराज कहते जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा भय है, उन्हां दे अंदर फिर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी ये जो है रास लीला चल रही है, ये किस ढंग नाल चल रही है, सतगुरुदेव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते ने। वायन चेले नचन गुर, चेले ते साज बजाते ने, कोई रबाब बजा रहा है, सरंगी बजा रहा है, मरदंग बजा रहा है, तबला बजा रहा है। इस तरह के जिहड़े नाल चेले ने वो ते साज पे बजाते ने, गुरु नचदा पे है। रासधारिया रास मंडली का जिहड़ा मुखी है वो नचदा पे है। हुण गुरु नच रहा है ते चेले साज पे बजाते ने, ऐसा रास लीला दे विच हुंदा है। वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। बड़े सोहणे ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने। आखिर नृत दे विच हत्थां दा हिलाना, पैरां दा हिलाना, सिर दा हिलाना, कमर इत्यादि दा हिलाना, शरीर दी जिहड़ी हरकत है इनू तरतीब दे दित्ती जाए तो फिर ये नृत बन जाता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, जोर दा नचदे ने। ते जद जोर दे नाल पौठड़ी पांदे ने तां उड उड रावा झाटे पाए। जैसे नचदे ने ते उन्हां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़दी है, मिट्टी उड़दी है। पुरानियां रासधारियां दा जिक्र सतगुरुदेव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे हैं। वेखे लोक हसे कर जाए, इस रास लीला नू वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने, खुश होंदे ने। भी सोहना गीत सुन के आया, सोहना नाच वेख के आया, बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं, जगत दे गीत बंदगी नहीं, रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन दा चाव है, मन दा परचाव है। तो जो रास मंडलियां ने उन्हां दे बारे साहिब कहते हैं रोटियां कारण पूरे ताल। इन्हां दा ताल पूरना, इन्हां दा नृत दिखाना, प्रभु नाल जोड़ना नहीं, रोटियां दी प्राप्ति है। इन्हां दा सारा ध्यान रोटी ते। रास तालियां दी ये मनोबिरती अक्सर बहुत नीवी देखी गई है। और रोटी दी मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी दे विच जो कुछ मंग करनगे, उस तो स्पष्ट होता है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले होंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी, परमात्मा ही रोटी सी, और उस रोटी दे आले दुआले ये नृत होंदा रहा, ये साज वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा। साहिब कहते रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। खूब धरती दे नाल अपने आप नू पछाड़दे ने, भाव लेट के भी नचदे ने, खड़े होके भी नचदे ने। इस तरह धरती दे उत्ते अपने आप नू जो है पछाड़दे ने। गावन गोपियां गावन गान, गीत की गांदे ने, गोपियां दे गीत गांदे ने, कृष्ण दे गीत गांदे ने, ग्वालियां दे गीत गांदे ने। इस ढंग दी ये रास लीला चलदी है। गावन सीता राजे राम, रामलीला भी आउंदी है, वो भी रास पाई जाती है। सीता दे गीत गांदे ने, राजे राम दे गीत गांदे ने, महिमा गायन करते ने। इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करते ने। महाराज कहते निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान। महाराज कहते वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है वो ते भय तो रहत है, आकार तो रहत है, उसका की आकार पेश करोगे। ਉਹਦਾ नाम सच्चा है, ते जिहदा कीता होया सारा जहान है, सारे जहान नू जो नचा रहा है ਉਹਨੂੰ नचाया नहीं जा सकता। ਇਹਦੇ ਚ सतगुरुदेव जी ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨਚ ਰਹੀ ਹੈ, सागर नच रहे हैं, दरिया नच रहे हैं, पवन नच रही है, और सूरज चंद तारे नच रहे ने। ते हुण कोई ये आखे कि असी परमात्मा दी रास पाके परमात्मा नू नचाना है, ते जिस परमात्मा नू असी नचा सकते हैं वो तो फिर साडे हत्थां दी खेड हो गया। इस वास्ते साहिब कहते ने नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। तो महाराज कहते ने गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान, सेवक सेवे करम चढ़ाओ। जिन्हां दे उत्ते बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा करदे ने। की सेवा करदे ने?
भिन्नी रैण जे ना मन चाओ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, भिन्नी रात है, मन ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਠੀਏ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉਠੀਏ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ भिन्नी जद रात है उठते ने, मन दे च बड़ा भारी चाव है, सिखी सिखिया गुरु विचार। गुरु दी विचार, गुरु दी सिखिया नु सिख के बकायदा हिरदे दे जो है धारण करते ने। अमृत वेले उठ के प्रभु दी बंदगी करते ने। ऐसे जड़े सिख ने, ऐसे जड़े भगत ने, नदरी करम लंघाए पार, इन्हां दे उत्ते प्रभु दी नदर हो जाती है, मेहर हो जाती है ते परमात्मा इन्हां नूं भव सागर तो पार लगा देता है, संसार सागर तो पार कर देता है। ते बाकी आखो नचण नाल गल बनेगी तो महाराज कहते जगत दे बहुत कुछ नच रहे हैं। कौन कौन नच रहे ने? कोलू, चरखा, चक्की, चक,